Hello students, now here we are going to discuss about the cloning vectors. Okay, we are going to discuss here about the cloning vectors, that what are the cloning vectors. So you know very well about the recombinant DNA, you have studied already, but here we are going to discuss about the cloning vectors. Okay, we have to know here about the cloning vectors, what are the cloning vectors. So already you have studied and you know very well about the plasmids, you have listened, you have studied about the plasmid. So cloning vectors are those which are helpful to increase the number of desired DNA fragments. Okay, you know very well that how the recombinant DNA is formed. Okay, so when we have to increase the number of desired DNA, if we have to make a number of copies of desired DNA, that's why we need a cloning vector. Especially cloning vectors are those which are useful, which are used to transfer the DNA to the bacteria, or when we have to increase the number of DNA, when we need to increase the number of DNA, when we need to increase the number of copy of same DNA. क्लियर? अगर हमें किसी भी डीएनए की कॉपी बनानी है, सपोज दैट हमारे पास बहुत कम डीएनए हैं, अब इस डीएनए से हमको बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है, तो इस डीएनए को हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड में हम लिंक कर देंगे, और फिर इस प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे, किसी बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, तो इसके वजह से क्या होगा, इस डीएनए की नंबर भी बढ़ती जाएगी। ओके, तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो द पर्पज़ ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इज़ दैट कि आइदर वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉपी ऑफ डिजायर्ड डीएनए, और व्हेन वी नीड टू ट्रांसफ़र द डीएनए टू द बैक्टीरिया और अदर प्लांट और एनिमल। तो देयर आर टू पर्पज़ ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। ओके, कि पहले तो हम डीएनए के नंबर बढ़ा दें, पहला कि डीएनए की नंबर को बढ़ाने के लिए, और दूसरा हम डीएनए को किसी भी होस्ट सेल या बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्लांट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी डीएनए को विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग vector. These are the two purpose of cloning vector. Okay, this is the simplification. Okay, so here this is the artificial cloning vector and named as the PBR322. Generally जो plasmid होता है, these are the natural extra chromosomal circular DNA that is present in bacteria. जितने भी plasmid होते हैं, you know कि plasmid always be present in bacteria like this. तो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, दिस वन इज प्लाज्मिड एंड दिस इज द जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, दोज आर प्रेजेंट स्पेशली इन बैक्टीरिया। बट हियर दिस इज अबाउट द आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, दिस इज अबाउट द आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। दिस इज द प्लाज्मिड दैट इज सिंथेसाइज्ड और कंस्ट्रक्टेड बाय टू साइंटिस्ट नेम्ड एज बॉलिवर रॉड्रिगेज। यहाँ पर PBR clear given here, PBR. तो PB, these are the name of two scientists, those have synthesized, those have constructed the first artificial cloning vector or plasmid. Okay, ये एक ऐसा प्लाज्मिड है जो कि दो साइंटिस्ट बॉलिवर और रॉड्रिगेज ने अपनी लैब में सिंथेसाइज किया, जिसकी हेल्प से हम किसी भी डीएनए की नंबर को बढ़ा सकते हैं, या किसी भी डीएनए को इसमें लिंक करके वो उसको हम किसी बैक्टीरिया प्लांट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी बैक्टीरिया में पहुंचा सकते हैं इस आर्टिफिशियल प्लाज्मिड की हेल्प से। इस प्लाज्मिड में हम डीएनए को लिंक करेंगे, और फिर डीएनए को लिंक करने के बाद उसको हम किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जैसे बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाएगा वैसे वैसे उसकी डीएनए की नंबर भी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज़ द artificially synthesized plasmid. Okay, and this is constructed by two scientists Bolivar and Rodriguez. Okay, so this is about the plasmid. Now the main feature of this plasmid, that this plasmid will have the different recognition site, those are specially identified by different एंजाइम्स। ये जितने भी आपके यहाँ पर सर्किल हैं, these all are the name of restriction endonuclease enzyme and you already know about the restriction endonuclease enzyme. तो जितने भी restriction endonuclease enzyme यहाँ पर गिवन हैं, यही यहाँ पर फंक्शन करेंगे, और इनकी हेल्प से यहाँ पर सब में कट हम लगा सकते हैं, जैसे लाइक दिस। एंड ऑल्सो यू कैन से कि जितने भी these all are the name of the restriction endonuclease enzyme,
तो इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ हर जगह कट लगा सकते हैं। और यू नो कि द पर्पज़ ऑफ cutting the DNA that we can transfer the DNA, we can transfer the desired DNA or foreign DNA like this okay। कोई भी बाहर का DNA हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं। तो these all are the name of restriction endonuclease enzyme, clear? And here these are the name of antibiotics like selectable markers, okay। यहाँ selectable markers का जो मेन रोल है that is to identify that gene is properly inserted or not। suppose that हमको desired DNA, suppose that हमको बाहर का DNA यहाँ पर ऐड करना है, suppose that यहाँ एम्पिसिलिन में, ठीक है। तो हम इस एंजाइम का यूज़ कर सकते हैं या इस एंजाइम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लें यहाँ पर हम DNA को कट करके यहाँ लगा दिया, क्लियर कर दिया, यहाँ पर DNA को लाइगेट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा, ऐसा करने से यहाँ पर दिस विल लॉस द रेसिस्टेंस अगेंस्ट द एम्पिसिलिन। इस समय जो प्लाज्मिड है, दिस प्लाज्मिड बिकॉज ऑफ हैविंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, दिस विल ग्रो इन बोथ मीडियम लाइक एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये जो इस समय प्लाज्मिड है, इस तरह का प्लाज्मिड क्या करेगा, दोनों तरह के एम्पिसिलिन में और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करेगा। और एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या हैं, दीज आर द सेलेक्टेबल मार्कर, ओके। तो सेलेक्टेबल मार्कर these are helpful in identifying in selection of recombinant and non-recombinant colonies, okay। recombinant on non-recombinant colonies, यानी कि हम इनकी हेल्प से ये पहचानते हैं कि हमारा जो DNA है वो प्रॉपरली इंसर्टेड हुआ या नहीं हुआ, वो सीधे तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज दैट हमने यहाँ पर DNA को इंसर्ट किया तो प्रॉपरली लाइगेट हो गया है या नहीं हो गया है। अगर हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है तो प्रॉपरली वो लाइगेट हो गया है या नहीं हो गया है। अगर सपोज दैट यहाँ पर वो लाइगेट हो जाएगा, सपोज दैट हमने जीन को यहाँ पर इंसर्ट किया, सपोज दैट यहाँ पर, तो ये जो प्लाज्मिड है वो टेट्रासाइक्लिन फिर ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि दिस विल लॉस द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द टेट्रासाइक्लिन। जिस साइड में हम DNA को इंसर्ट करते हैं उस साइड में वो क्या करेगा, वो टेट्रासाइक्लिन के लिए अपनी रेजिस्टेंस पावर को लॉस कर देगा। और जबकि इससे पहले सपोज दैट अब इस समय हमने ना तो यहाँ पर DNA ऐड किया है ना यहाँ पर, तो इस समय ये जो प्लाज्मिड होगा वो प्लाज्मिड दोनों तरह के मीडियम में ग्रो करेगा, चाहे वो एम्पिसिलिन हो चाहे टेट्रासाइक्लिन हो। लेकिन जब हम DNA को इंसर्ट कर देंगे यहाँ टेट्रासाइक्लिन में तो वो केवल यहाँ एम्पिसिलिन वाले में ग्रो करेगा, क्योंकि DNA को जैसे ही हम किसी साइट पर लाइगेट करते हैं, सपोज दैट टेट्रासाइक्लिन साइट पर हमने लाइगेट किया DNA को, तो वहाँ पर उसके अगेंस्ट उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो लॉस हो जाती है, जिसके वजह से वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा और केवल वो एम्पिसिलिन में ही ग्रो करेगा। तो दीज सेलेक्टेबल मार्कर आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट, यानी कि अगर DNA प्रॉपरली टेट्रासाइक्लिन में इंसर्ट हो गया है तो वो रिकम्बिनेंट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ है तो वो नॉन रिकम्बिनेंट होगा। तो दीज आर हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट कॉलोनीज, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, ओरिसाइट। तो दिस इज हेल्पफुल इन मेकिंग द कॉपी ऑफ डिजायर्ड DNA। वी कैन लाइगेट हियर द DNA ऑल्सो इन ओरिसी साइट, एंड ऑल्सो दिस इज ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट। यहाँ पर क्या होता है कि DNA को हम लाइगेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से DNA के नंबर यहाँ बढ़ सकती हैं, ओके। एंड दिस पार्ट सिंथेसाइज द प्रोटीन दैट इज हेल्पफुल for replication of plasmid, okay। This part synthesize the protein that will helpful in replication of plasmid, okay। So this is all about the plasmid and their feature about especially PBr322, okay। Still if you have any confusion then you can discuss with me.